जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, आई एम एन्जॉइंग गुड हेल्थ एंड होपिंग द सेम फॉर यू पीपल। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं बखैरियत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। ऑफ कोर्स it is the choicest blessing of Allah Almighty that today I'm again giving you lecture to you people, because life does not give that much chance in your life on earth. Whatever the moments conferred upon you by Allah Almighty, you need to make them very purposeful and meaningful by employing all that faculties, abilities, capabilities with which Allah Almighty has bestowed you to serve your fellow beings, living in your capacity, living in your very talent and your field, perspective field. Allah creates nothing purposeless. We have been descended this world, of course, with certain purpose, and we need to keep that very purpose and aim alive in our life. Of course, that makes your life keep going and going in a very useful manner. It is, of course, very choicest benediction and blessing of Allah Almighty. He has created you a human. He might have created us animals. There is a certain purpose behind our creation. We ought to live our life up to the very purpose. The purpose is to serve your fellow beings, as I have already said, by living in your capacity, in your perspective field. That's the composition of society, that we are depending on one another and going to be beneficial for the people around, useful for the people around. That's the very purpose of life. And we always keep the very purpose in front of us to spend our life accordingly. Dear students, now we are going to reconnect our lecture with the previous one. I've been trying to describe the comma dilatorally. In this respect, we are going to resume from where we have left. So let's go towards the board. The comma. The next use of comma, dear students, I am pretty sanguine and optimist that you people are kept, you are well in contact with the lecture, inshallah.
and thank you for your subscription. And the people who have not subscribed my channel so far, they ought to subscribe it as well. तो अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब कर लें to get maximum out of this endeavor and effort. I'm locked in. Of course, it's a titanic struggle, and when I feel that I'm serving the fellow beings, it makes me feel elevated and dignified. Thank you. तो जिन लोगों ने अभी तक, the people who have not subscribed to my channel so far, they ought to subscribe to it now. तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चाहूँगा कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर द एंडोर्समेंट एंड बम्पर एंडोर्समेंट, आई मस्ट से. You people are giving to me. That's a very healthy response. Thank you very much. The comma is used to set off the figures. आदात को अलग करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. आदात को, फिगर्स को. फॉर एग्जांपल, इन 1940, कॉमा 440 एम्प्लॉइज अटेंडेड द मीटिंग. इन 1940, अब देखें ये फिगर्स हैं, दोनों को हमने सेपरेट किया और इन बिटवीन फिर हमने सेपरेट करने के लिए वहाँ कॉमा को पुट किया. इन 1990, 440 एम्प्लॉइज अटेंडेड द मीटिंग. फिगर्स को सेट ऑफ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. और नेक्स्ट यूज ऑफ कॉमा फॉर कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव. कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव के लिए भी डियर स्टूडेंट्स हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अनवेवरिंग, अनफ्लिंचिंग. अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, कॉमा अनफ्लिंचिंग एफर्ट ऑफ द कायदे-ए-आज़म मेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पॉसिबल. अनफ्लिंचिंग, अनवेवरिंग, गैर मुतज़लज़ल कोशिश, सही मुसलसल, यकीन मुहकम, अमले पहम, मोहब्बत फाते आलम, जहादे ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें. यकीन मुहकम डियर स्टूडेंट्स, फर्म बिलीफ. अमले पहम, constant effort. Unwavering, unflinching, consistent effort. The love that wins people around. These are the swords of men in the battlefield of life. यकीन मुहकम, अमले पहम, मोहब्बत फाते आलम, जहादे ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें. अनवेवरिंग, अनफ्लिंचिंग एफर्ट ऑफ द कायदे-ए-आज़म मेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पॉसिबल. नेक्स्ट वन, टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लॉज. टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लॉज. नॉन एसेंशियल क्लॉज को, गैर ज़रूरी क्लॉज को अलग करने के लिए भी डियर स्टूडेंट हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, एसन, एसन, कॉमा अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, कॉमा यहाँ भी हम कॉमा पुट करेंगे. अ फ्रेंड ऑफ माइन, कॉमा इज़ लिविंग इन द यूके दीज डेज. is living in the UK these days. Essen, a friend of mine, is living in the UK these days. तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा देख रहे होंगे कि यूके से पहले मैंने आर्टिकल दी लगाया. वो कंट्री जिनकी कंपोजिशन जो है ना मुख्तलिफ रीजन्स पे या स्टेट्स पे है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं. या यूँ कह लें कि वो कंट्रीज़ जिनके नाम एब्रीविएशंस में हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं. एसन, कॉमा अ फ्रेंड ऑफ माइन, कॉमा इज़ लिविंग इन द यूके दीज डेज. दीज डेज, नाउ अ डेज, ये की वर्ड्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की.
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फॉर टाइटल, टाइटल के लिए फॉर एग्जांपल जैसा कि दी शेरे मैसूर कौमा टीपू सुल्तान, दी शेरे मैसूर, ये अब उनका टाइटल है, खिताब है, दी शेरे मैसूर, और टाइटल से पहले हम आर्टिकल दी भी लगाते हैं, दी शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। जी डियर स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट वन इज फॉर नेम फॉलोड बाय जूनियर, सीनियर, पीएचडी, जूनियर, सीनियर, पीएचडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो वो नाम जिनके बाद जूनियर, सीनियर या पीएचडी के वर्ड्स आते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, पीएचडी एट्सेट्रा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी डियर स्टूडेंट्स, टू सेपरेट डे, मंथ, ईयर, टू सेपरेट डे, मंथ, ईयर, किसी दिन, महीने या साल को अलग करने के लिए। अगस्त 28, कॉमा 2022, अगस्त, कॉमा 2022, टू सेपरेट डे, मंथ, ईयर, दिन को, महीने को, साल को अलग करने के लिए। अगस्त 28, 2022। फॉर अ कोटेशन, किसी कहावत के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर सेज, कॉमा, शेक्सपियर सेज, कॉमा, शेक्सपियर सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में, हाउ शार्पर देन अ serpent's tooth it is to have a thankless child. How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये फीलियल ड्यूटी के ऊपर किंग लियर में बड़ा मारूफ ट्रेजेडी है। किंग लियर शेक्सपियर का बहुत मारूफ प्ले है। उसके अंदर वो कहता है फीलियल ड्यूटी के ऊपर, औलाद के फ़र्ज़ के ऊपर, कि बदतहज़ीब औलाद, बदतहज़ीब औलाद का जो बदतहज़ीबी होती है, बदतहज़ीब, बदतमीज़ औलाद की बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी बहुत बड़े जहरीले साम से भी ज़्यादा वेनमस, पॉइजनस यानी जहरीली होती है। Always stay obedient, submissive, docile, and very, very obedient, very, very obedient to your parents. They are the precious assets of your life. Always be very obedient and submissive to your parents. How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. G for a quotation. Dear students, next, after introductory phrase, introductory phrase के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। introductory phrase के बाद as, जैसा कि To get my shoes, I went to the market. To get my shoes, अब ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है। To get my shoes, I went to the market. The market, यहाँ वो जूते अवेलेबल होंगे जहाँ से आप ख़रीद सकते होंगे। To get my shoes, I went to the market. The market अब स्पेसिफाइड कर दिया, वो मार्केट जहाँ से उसने जूते ख़रीदने हैं, यानी स्पेसिफाइड कर दिया, ऑलरेडी इन माइंड है। So to get my shoes, comma, I went to the market.
आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज। तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। डियर स्टूडेंट्स, टू गेट माई शूज़ या टू गेट माई बुक्स कॉमा आई वेंट टू द मार्केट, टू गेट माई शर्ट्स I went to the clothing shop. So dear students, after introductory phrase, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कॉमे का इस्तेमाल इंशाल्लाह। तो इसको मैं मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम चीज़ें ऐसे ज़्यादा हो जाएं, हीप अप हो जाएं तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो जितना डियर स्टूडेंट्स पॉसिबल है थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं, सो दैट यू मे बी एबल टू इस्टेब्लिश योर ग्रिप ऑन द वेरी टॉपिक अंडर डिस्कशन। एंड आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्ट एंड होपफुल एंड सैंग्विन दैट यू पीपल आर going to engineer your grip that stalwartly and stoutly and strongly on the very lecture given to you. Thank you very much. Till next, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around. क्या खूब बाबा जी इशफाक अहमद फरमाते हैं कि दिलों में ज़िंदा रहने का फ़न सीखिए। दिलों में वो कहते हैं वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो आसानियाँ तकसीम करते हैं, बांटते हैं, वो लोग दिलों में ज़िंदा रह जाते हैं। Even though they are not part of the mundane, they stay alive in our hearts forever and ever. Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.